Yavanika. Most of you know about us. For those who don't, a little bit about us. We were founded almost 40 years back by a few theatre-loving youngsters with the blessings of the then Information and Broadcasting Minister, Mr. Shah. The first play was a roaring success, which encouraged the group, and for the next 20 years, Yavanika enthralled the theatre lovers of Delhi and other cities with plays of every genre: comedy, serious, musical, experimental, absurd, historical, and mythological. This is our 12th show in front of Hindi theatre-loving audiences in Delhi. मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है। गोदान उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है। A little bit about the play. Godan is Premchand's most famous novels and has become a classic of Indian literature. It deals with, among other things, the exploitation of poor, illiterate peasants at the hands of a rich landlord. It's a moving social document that is as relevant today as when it was first written. The classic is themed around the socio-economic deprivation as well as the exploitation of the village poor. The protagonist, the main character, Hori, a poor pheasant, desperately longs for a cow, a symbol of wealth and prestige in rural India. In a Faustian twist of fate, Hori gets his cow, but ends by paying for it with his life. And even after his death, the village priests demand a cow from his widow to bring his soul absolution and peace. And that is Godan. It represents the existence of the average Indian farmer under colonial rule, with the protagonist facing cultural and feudal exploitation. Godan is a story of people hungry and semi-starved, yet hopeful and optimistic in the truest spirit of the age it represents. The best thing about this classic is that it stretches itself into each and every corner of village life and high society. Premchand created his characters so brilliantly that each one brings its own story and sympathy to the human realities. We'll present Godan to you by our group Yavanika, which, ladies and gentlemen, is a genuine amateur theatre group in Delhi. Our actors are from different professions: lecturers, journalists, housewives, students, businessmen, and lawyers. We hope you'll enjoy watching this as much as we enjoyed producing it. We'll request you to switch off your mobile phone. यही दोहराती है, पर ये अच्छी तरह से जानती है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो
कि अब तक जान बची है। जब किसी के पांव तले गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही भला है। और ये बात समझ ले कि मालिक जानते हैं, इसलिए 4 लोग आदर करते हैं। नहीं तो 5 बीघा जमीन की खेती करने वाले तेरे आदमी को कोई ना पूछे। चल झटपट लाठी दे। यही कपड़े ठीक है? ससुराल जाना है जो इतने कपड़े उठा लाई। वहाँ भी कोई जवान सारी सलज ना बैठी जिसे जाकर दिखा दे। हाय हाय, ऐसे तो बड़े सजीले जवान हो जो साले साले देख के रह जाएंगे, हैं? क्या समझती है कि हम बुढ़ाए गए हैं? अभी तो 40 भी पूरे नहीं हुए। मर्द 60 में पाठे होते हैं। अच्छा, जाकर तनिक शीशे में मुंह देखो। तुम्हारे जैसे मर्द 60 में पाठे नहीं होते। दूध की आंजने तक को तो है नहीं, पाठे होंगे। अरे तुम्हारी दशा देख देख के तो हम ही सूखे जा रहे हैं कि भगवान जाने कैसे कैसे कटेगा बुढ़ापा। इसकी चिंता तुम मत कर धनिया, 60 तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। उससे पहले ही हम चल देंगे। अच्छा, इतनी असूल बातें मत निकालो मुझसे। तो कोई अच्छी बात भी करो तो पोसने शराब में लगते हो। कि मत बिगड़ सवेरे सवेरे, गोबर को भेजना मत भूलना। अरे राम राम बोलो भाई। राम राम भैया। कहो मजे में? हाँ हो रही। मैं तो अब क्या बताएं भैया, बस कट ही जा रही है। अरे जब से तुम्हारी भौजी गई है तब से तो उगर काटे लौटा है भैया। सब भगवान की माया है भाई। हाँ। आओ बैठो। सुना है ई बार मेले से नई गाय लाए हो? हाँ भैया, 2 बछिया और 2 गैया ले आए हैं। अरे पहले वाली सब सूख गई। अब घर में दूध भी ना पहुंचे तो भैया गुजर कैसे हो? ई गाय तो बहुत अच्छी है। कितने में ली? अरे महतो अब की बाजार बहुत तेज रहा तो गैया का 80 रुपया देना पड़ा और 2 बछिया का 30। अरे भाई बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का। अंजुरी भर रुपया देकर ले आते हैं और वो भी तकदीर के भरोसे। धन्य है तुम लोगों का जीवन भोला भाई जो गाय की सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं, दूध घी तो दूर की बात। हाँ भाई सो तो है। तो हम लोगों के जीवन में और क्या है, धन की सब साथ मन में रह जाती है। घर में एक गाय ना हुई तो क्या हुआ? घरवाली की भी एक बहुत इच्छा है। रोज कहती है भोला भैया से कहते काहे नहीं, सुविधे से दिलवा देंगे। हम ये डाल जाते हैं कि इतना रुपया कहाँ से पावेंगे। अरे कुछ इंतजाम कर लो भैया, फिर कहना अरे देखेंगे। हमारी फौजी तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न है। कहती है सारे गांव में ऐसा मर्द नहीं देखा, बात करते हैं तो नजर नीची करके। जब से तुम्हारी बहू गुजरी है तुम्हारे बारे में बराबर पूछती है कि भोला भैया का फिर से घर न बसाएंगे। अरे ताव में तो हूँ महतो। अरे पर क्या करो, कोई फंसता ही नहीं। 150 खर्च करे को भी तैयार हूँ, फिर भी भगवान चाहेगा तो जल्दी घर बस जाएगा। बस समझ लो उबर जाएंगे भैया। घर में ऊका दिया सब कुछ है। अरे पर किस काम का? अरे हाँ ध्यान है, हमारे ससुराल में एक भेड़िया है, उसका आदमी छोड़कर कलकत्ता चला गया है। देखने सुनने में ठीक है, कहो तो बातचीत चला गए। महतो तुम ये काम करवा दो भैया तो बस। अरे चलो छुट्टी हो तो कल चल के देखा है। इतने उतार ले मत बनो, मौका देखकर बातचीत करेंगे। महतो भैया देखो अब हमें तो ना तुम्हारा ही भरोसा है। इस गौरी पर मन ललचाया हो तो भैया छोड़ जाए। अरे भाई हम इतना रुपया कहाँ से पावेंगे, ये हमारे मान की ना। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो भैया जैसे हम तुम दो हो। अरे भैया रख लो, 80 में लाए हैं, तुम 80 दे देना। हमारे पास इतना नकद रुपया नहीं है दादा। अरे तुमसे नकद मांगता कौन है? भैया रख लो भैया, तुम्हारे पास रहेगी तो सुख से रहेगी। अरे तुम सेवा जतन करोगे, मालिक तो 90 देते रहे। अरे पर हमने नहीं बेची। इसी आपके हम काम के यहाँ गाय की क्या कदर भैया, जब तक दूध देगी तब तक तो रखेंगे, क्या करेंगे? अरे फिर बेच देंगे और क्या? ना भैया ना, ई गैया ई सुंदरिया को तो देखो तुम ही रखो भैया। हाँ तो भैया जरा 10-20 हो तो दे दो। देखो अब क्या बताएं तुमसे, घर में तनिक भी भूसा नहीं है। वो महाजन का पहले वाला कर्जा नहीं चुकाया। अरे तो वो नया देता ही नहीं। अरे भूसा तो हमारे पास नहीं है, पर चलो कुछ नहीं, रुपया भी नहीं है,
इंतजाम करते हैं। और तुमने हमसे पहले काहे नहीं कहा किसी को भेज देना फिर ले जाएगा। और भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और हम ले लेंगे। राम राम राम, हमारे हाथ न कट जाएंगे। मैं तो लेकिन महतो, अरे अपना भूसा हमें दे दोगे तो फिर तुम्हारे बैल का खाएंगे। इस बार भूसा अच्छा हो गया रे दादा। ओ, तो फिर भूसा का दाम देखो दूध में कटवा लेना। राम थोड़ी की इसमें कौन सी बात है। हम एक तो दूध तुम्हारे यहाँ खा लेंगे तो तुम क्या हमसे दाम मांगोगे? नहीं भैया नहीं, हम तुम्हारा ये उपकार देखो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो कबरी को छोड़ जाए। अरे नहीं कहा भैया, अब ये गैया तुम्हारी हो गई। अरे जब इच्छा हो ना आकर ले जाना। तो किसी को भेजते हैं फिर भूसा के वास्ते। अरे भाई, अभी तो हम मालिक की ड्योढ़ी जा रहे हैं, वहां से घड़ी भर में लौटेंगे, तब किसी को भेज दें। ठीक है महतो भैया, वो देखो वो बात को भूल मत जाना भैया है। राम राम भाई, राम राम। अम्मा से कह दे कि हम खेत जा रहे हैं, रोटी दोपहर तक लौटकर यही खाएंगे। अच्छा भैया। अबेर हो गई, ना बाप का पता ना बेटे का। इससे भला तो खेत पर ही रोटी भिजवा देते। इतनी अबेर कर दी गोबर, काम के पीछे प्राण दे दोगे क्या? और तुम कहां से कमाई करके लौटे जो खेत चले गए? खेत कहीं भागा जाकर आ। चलो हाथ मुंह धो लो। सब ठीक है? रोटी बनाई है। और क्या बातचीत हुई मालिक से? अरे यही जैसी वसूल की बातचीत। हम लोग समझते हैं बड़े लोग बड़े सुखी हैं, पर सच पूछो तू तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें तो खाली पेट की चिंता है, उन्हें हजार चिंता घेरे रहती है। उन्हें कौन सी चिंता है? सब सुख तो भगवान दिए हैं। अरे हम भी यही समझते रहे, पर आज राय साहब ने जब हमें बताया तो हमारी आंखें खुल गई। भाई बहन सारे पीछे पड़े रहते हैं, पर कुछ कहे तो खराबी और ना कहे तो खराबी। ये सब बात है, ऐसे ही तो जे लोग तुम जैसे सीधे साधे किसानों को फुसलाया करते हैं। अरे तू तो बिल्कुल अपनी माँ पर पड़ा, हर बात में कानून होने से हजार झंझट झेल लेते हैं। मेरे पास ना कुछ है ना हमें कोई चिंता, पर उनका हाल बुरा है, बहुत दुखी होते रहे। तो फिर अपना इलाका हमें का ही नहीं दे देते? हमारे हल बैल से बदल ले, हम तैयार हैं। दुखी हैं। अरे अब तुझसे बहस कौन करे भाई? ऐसे कोई अपनी जमीन जायदाद छोड़ता है जो जमींदार छोड़ दे। हम अपना खेत छोड़ सकते हैं क्या? ऐसे हमें उसका रोग है, वैसे उन्हें भी। अब फिर उनकी मर्जाद तो जमींदारी से ही है ना। अब उसमें कितना भी झंझट हो वो छूटे कैसे? कोई झंझट नहीं है।